हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू माय फर्स्ट एवर यूट्यूब वीडियो। आप लोगों ने मेरी एडिट्स बहुत सारी देखी हैं, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम रिवीलिंग माय फेस एंड ऑल्सो डूइंग अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन विद यू गाइस। जब मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब, I didn't even think कि मैं I would be shooting a 150k subscriber YouTube video, guys. Come on, चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। I know मैंने 100k पे भी यही चीज़ बोली थी कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैंने नहीं बनाई बिकॉज ऑफ माई लेजीनेस। अबे साले। लेकिन फाइनली नाउ 150k जैसे ही मेरे हुए तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि आप लोग मुझसे सवाल जवाब पूछें, प्लस मैं 100k वाली पोस्ट से भी लेके आऊँगा सवाल जवाब जो उस टाइम लोगों ने मुझसे पूछे थे, विच आई कुडंट आंसर। पहले तो मुझे घंटा लगा है घर में एक जगह ढूंढने के लिए कि कहाँ पे वीडियो बनाई जाए, फिर इतने मसले होते हैं वीडियो बनाने के लिए। 2 hours later. Okay, so without any further ado, I think we should start the Q&A session because देसी फैमिली और देसी घर में वीडियो शूट करना एक आपस में एक बहुत मुश्किल टास्क है। जो आपको पीछे आवाजें आ रही हैं बिकॉज आई डोंट हैव अ माइक, मैं गरीब हूँ and it's also my first time shooting a video, so I don't know how to shoot it, so bear with me guys. कोई तरीका है भीख मांगने का? तो let's start the Q&A session. सबसे पहले बॉस एडिट्स 508 ने पूछा है, यू आर पाकिस्तानी? यस, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान. आई वॉज born and raised in Pakistan. Okay, so the next question is from Kareem Films. Do you watch Kurulus Usman? No, I haven't watched that. मुझे मैग्निफिसेंट सेंचुरी खत्म करने में इतना टाइम लगा कि फिर मैंने और अभी तक कुछ देखा नहीं है. Which is your favorite couple in Magnificent Century? Oh my God, this is a very tough question. See, the thing is कि अगर आप बात करो लॉयल्टी की, the thing is कि अगर for example if you say कि जो दोनों कपल्स एक दूसरे के लिए बने थे and they were loyal in the show to each other. ठीक है, समझ गया. So I would say Salim and Nurbano. The thing is कि Salim never had anyone other than Nurbano. The point is कि even though history में Hurrem Sultan and Sultan Suleiman were a great couple, but in show they ruined that relationship. Just for the ratings of the show, they destroyed real relationships. What are your favorite drama except Magnificent Century? Wait, second question में मैं ये भी बोलूँगा कि second question में my favorite couple is also Faria and Murad because they were very cute and they looked very great with each other. I don't know, आपने ये मुझसे पूछा है कि कोई और टर्किश ड्रामा मेरा फेवरेट है या इन जनरल कोई और मेरा फेवरेट ड्रामा. अगर आप टर्किश का पूछ रहे हो तो my favorite drama except Magnificent Century would be Fereha. It is my childhood memory. A great show. If you haven't watched that, you should watch it. Okay, so this one is from Aisha Muqaddas. The first question is, which city do you live in? So I live in Islamabad, the capital of Pakistan. I'm supposing आप भी पाकिस्तान से हो, so you would know. Oh my God! The second question is, what do you study if you are a student? Yes, I am a student. I am currently doing BS Aviation Management and I am in second semester. Third question is, what inspired you to do edit? So this one, I think so कि मैंने ये चीज़ पहले भी बताई है, but I would repeat it. So it's a very long story. So I would share it with you guys. So क्या हुआ था कि January 2022 में my mother died because of breast cancer. So after my mother's death, editing was my coping mechanism. It became my coping mechanism because when I used to edit, जब मैं edit करता था तो फिर मुझे बाकी सारी चीज़ें भूल जाती थी. तो एक एडिट बनाने में मैं 2-3 घंटे लगाता था. तो जब वो 2-3 घंटे में लगाता था तो फिर मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता था. तो एक मेरा एक कोपिंग मैकेनिज्म हो गया था उस चीज़ से. मेरी अम्मी की डेथ के बाद की जो जब आप किसी अपने को खोते हो तो उसके बाद यू आर नॉट योर सेल्फ एंड यू आर नॉट रियली हैप्पी. तो एक एडिटिंग मैंने स्टार्ट की थी कि अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए, और मैं जब 2-3 घंटे उसमें लगाता था और जब वो एडिट इतनी अच्छी बनती थी तो मुझे खुशी होती थी. तो फिर मैं वो देख के मुझे अच्छा लगता था. तो ये चीज़ फिर जो है ना वो
इसने मुझे काफ़ी हेल्प की थी मेरे डिप्रेशन के अंदर. बेसिकली नॉट इंस्पायर्ड यू टू एडिट, बट हाँ ये है कि यहाँ से मैंने अपलोड करना स्टार्ट की थी. मतलब डेली मैंने ये भी बताया हुआ अपने चैनल पे कि मैंने सबसे पहले जो है वो एक वीडियो अपलोड की थी. एक ट्रेंड चल रहा था ऑल द थिंग्स यू सेड, नहीं ऑल द थिंग्स शी सेड, सॉरी ऑल द थिंग्स शी सेड का जो है ना वो चल रहा था ट्रेंड. तो वो मैंने अपलोड किया एंड देन उस पर अचानक तब शॉर्ट्स बहुत नई थी, तो उस पर अचानक काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आने लग गए. आई शोड माई कज़न, तो मैंने उसको दिखाया कि 1 घंटे में 1000 व्यूज़ आ रहा था. दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी, स्पेशली अब आके जब मैं देखता हूँ कि मेरा 1000 हुआ है कोई 4-5 घंटे में या कुछ इस तरह, तो आई एम कि यार व्यूज़ रुक गए हैं. एंड और मुझे अभी बात करते करते रियलाइज़ हुआ है कि मैं कितना नाशुक्र हूँ. फिर जो है ना मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार चलो मतलब व्यूज़ आ रहे हैं, तो फिर मैंने भी रैंडमली अपलोड करना स्टार्ट कर दिया. मैं देखता था कि लोग किस तरह एडिट करते हैं, क्या करते हैं, सारा कुछ. तब मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था ये चीज़ करना. मुझे एक चीज़ मुझे लगता था कि बहुत मुश्किल है. अब आहिस्ता आहिस्ता सीख रहा हूँ, तो मुझे अभी तक भी आई एम नॉट द बेस्ट एडिटर, लेकिन आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ एवरी डे. We need a tutorial now. Okay, ये बात मैंने I think so किसी और से भी की थी कि I will upload a tutorial, but again मेरे पास मुझे टाइम ही नहीं मिलता. मेरे पास इतने ज़्यादा कंटेंट है अपलोड करने के लिए अभी भी. मेरा जो मैं जब टर्की गया था तो मेरा पूरा टर्की का जो व्लॉग है वो अभी तक पड़ा हुआ है एंड मैंने अभी तक उसको एडिट भी नहीं किया. मैंने वो अपलोड करना है एडिट करके. तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से. फिर मैंने ट्यूटोरियल भी अपलोड करना है करो फिर, क्योंकि मैंने किसी को बोला था आई थिंक सो कमेंट सेक्शन में समवन सेड के हाउ टू डू दिस एंड ऑल दैट. सो आई सेड कि शुड आई मेक अ वीडियो, तो उन्होंने बोला था कि यस वी नीड अ वीडियो. तो फिर मैंने कहा था कि मैं बनाऊंगा, बट अभी तक मैंने वो भी नहीं बनाई. आई एम सॉरी फॉर दैट. हैव यू वॉच्ड अब्दुल हामिद? नो आई हैवंट वॉच्ड. मैंने अभी यही बताया कि मैग्निफिसेंट सेंचुरी के अलावा आई डोंट थिंक सो कि मैंने कोई हिस्टोरिकल ड्रामा या टर्किश ड्रामा देखा है, और मुझे नहीं लगता उसके बाद कोई देखने की जरूरत भी पड़ती है. कैसी लड़की है कमोजी? तुम्हें कैसी लगती? अपलोड फास्ट, ये क्वेश्चन नहीं, ये तो ऑर्डर है. और सही बात है, ऐसा ही है, क्योंकि मैं बिल्कुल फास्ट अपलोड नहीं करता. आई एडमिट दिस, बट या अगेन आई विल अपलोड इंशाल्लाह न्यू वीडियोस फॉर यू गाइस. Okay, so now these questions I am really eager to answer because पहले तो मैं कैमरा देख लूँ. इधर नहीं है, इधर है. Okay, sorry. शाबाश बेटा. So these questions I am really eager to answer because this is from a person जिसको जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है. I think so जब से मैंने YouTube स्टार्ट किया है probably, या फिर चलो जब से मैं मेरी ग्रोथ हो रही थी, तो they have been a part of my journey. So it is एहतशाम यूनस, और उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे भेजे हैं और मैं सबका आंसर दूंगा. एंड आई थिंक सो दे आर रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. सबसे पहले क्वेश्चन है, हाउ डिड यू गेट द आइडिया दैट यू शुड स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल विद MC एडिट्स? सो अभी मैंने पिछले वाले में मैंने थोड़ा इसका आई थिंक सो आंसर दे दिया है, बट अगेन आई विल आंसर इट. सो बेसिकली यही था कि जब मेरी एक वीडियो के ऊपर व्यूज़ आने लग गए तो आई थॉट कि मुझे अपलोड करना चाहिए और मैंने आहिस्ता आहिस्ता करने लग गया. द थिंग इज़ कि मैंने कभी भी व्यू के पीछे नहीं मैंने अपलोड किया. मोस्ट पीपल जब दे आस्क मी कि हमारी रीच नहीं आ रही या कुछ हमें आप सजेस्ट करें, तो तब भी मैं उनको ये बोलता हूँ कि क्योंकि सारे लोग सिर्फ रीच देख के या मेरे चैनल की या किसी और चैनल की देख के उनकी बहुत ज़्यादा अपलोड करने पे आती है, तो हम लोग भी करते हैं. तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि रीच के पीछे मत जाओ, बल्कि अपना कंटेंट इम्प्रूव करो. इम्प्रूव योर कंटेंट एंड एडिट बिकॉज इट्स फन, नॉट बिकॉज इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एडिट. ठीक है, इवन तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है एडिटिंग, लेकिन आप एडिटिंग इसलिए करो क्योंकि आपको उसमें मज़ा आता है एडिट करने में. अगर आप ये समझ के एडिट करोगे कि मुझे व्यूज़ लाने तो आई एश्योर यू कि फिर इस तरह व्यूज़ नहीं आने वाले.
आप अगर अच्छे कंटेंट बना रहे हो और अगर आप अच्छे कंटेंट बना रहे हो और साथ में अगर आप पूरा मतलब अपना एंजॉय करते हुए बना रहे हो, तो व्यूज़ आए ना आए उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको आपकी बहुत अच्छी जर्नी जाएगी। और आई एश्योर यू, ज़्यादा से ज़्यादा जिनसे पूछोगे ना तो उनका यही होगा कि भाई हमने तो रैंडमली अपलोड करना स्टार्ट किया था और हमारे व्यूज़ आने लग गए, क्योंकि जो लोग व्यूज़ के पीछे नहीं भागते ना उनके व्यूज़ आने लग जाते हैं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। एंड मैं इस बात का गवाह हूँ, बिकॉज मैंने भी व्यूज़ के पीछे नहीं, मैंने अपना कोपिंग मैकेनिज्म बना के एडिटिंग स्टार्ट की थी और वो व्यूज़ इतने ज़्यादा आ गए तो फिर अब आई कांट से एनीथिंग। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। Next question is, have you ever been bored while editing and you may have thought that you should stop editing videos because this is a time wasting activity? Yes, मैंने बहुत बार ये चीज़ सोची है and I think so कि मैंने जितने मेरे चैनल के बीच में गैप्स आते हैं जो मैं 2-2 महीने अपलोड नहीं करता, वो उसका मेन रीज़न आई थिंक सो यही होता है कहीं ना कहीं कि मतलब अब मैं कहता हूँ कि देखो यू गाइज आर माई MC फैंडम, सो मतलब यू गाइज लव माई MC एडिट्स, तो अगर मैं उनके अलावा कोई एडिटिंग करूँ तो आई थिंक सो कि ना उस पर व्यूज़ आएंगे और ना वो वीडियो शायद लोगों तक यूट्यूब पहुँचाए, तो फिर आई हैव टू अपलोड MC एडिट्स ना टू एंगेज विद यू गाइज। तो फिर मुझे ये बड़ा होता है कि आई डोंट हैव अ चॉइस कि मैं किस चीज़ के ऊपर एडिट करूँ और किसके ऊपर नहीं करूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर मुझे नहीं दिल कर रहा मेरा मैग्निफिसेंट सेंचुरी पे अपलोड करने का वीडियोस, स्टिल आई हैव टू डू दिस फॉर यू गाइज, क्योंकि वरना मेरा चैनल फिर डेड हो जाएगा। तो मुझे इसलिए कभी कभार ये चीज़ बोरिंग लगती है कि मतलब अब कभी कभार आपका दिल नहीं करता कि बिकॉज आप कहते हो कि आप बहुत मतलब मैंने अब आई थिंक तो हर चीज़ के ऊपर तो मैं एडिट कर चुका हूँ अपने चैनल पे, अभी भी इतनी चीज़ें पड़ी हैं स्टिल, लेकिन मेरा कभी बार फिर दिल नहीं हो रहा होता कि यार मेरा दिल नहीं कर रहा है इस चैनल पे MC एडिट्स अपलोड करने का, तो फिर मैं हो जाता हूँ बोर। तो यस, द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ योर फेवरेट यूट्यूब चैनल फॉर एडिट्स? ओके, माई फेवरेट यूट्यूब चैनल वॉज विची वू। आई डोंट नो आप लोग जानते हो मेरे मोस्टली यूट्यूब चैनल वालों को पता है चैनल कह रहा हूँ, मेरे मोस्टली यूट्यूब फैंस को पता है जो फॉलोअर्स हैं, क्योंकि वो मेरे सब्सक्राइबर्स भी थे और विची वू के सब्सक्राइबर्स भी थे, एंड यू गाइज नो कि उसके कंटेंट कैसा था गाइज। आई कांट इवन कंपेयर माई सेल्फ विद हर कंटेंट बिकॉज शी वॉज फिनोमिनल, शी वॉज द बेस्ट यूट्यूब एडिटर फॉर एवर। मतलब मैं कहता हूँ कि I needed her skills, but I don't know वो उनका चैनल कहाँ गया, she disappeared and I really miss watching her edits। अगर आपको पता है कि and if Vichi Woo is watching this and I don't know अगर आप में से किसी को पता है कि वो किधर है ये what happened to her channel, तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा। The next question is who gave you the idea that you should make edits? No one। किसी ने भी मुझे एडिटिंग की आइडिया नहीं दिया। आई टोल्ड यू गाइज कि मैंने खुद स्टार्ट किया, बट हाँ मेरी कज़न मोटिवेटेड मी कि यू शुड स्टार्ट अपलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू एवर थॉट दैट यू विल रीच 100K सब्सक्राइबर्स? नो, मुझे अभी भी यकीन नहीं आता। मुझे जब मैं लोगों को बताता हूँ, अब तो मेरे 150K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं ना, तो मैं लोगों को बताता हूँ कि मेरे 150K सब्सक्राइबर्स हैं, तो दे थिंक कि या तो मैंने खरीद के लिए हैं या दे थिंक के आई एम ब्लफिंग, बट यकीन नहीं होता है। मतलब इवन तो मैं खुद भी आई एम नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू आई डोंट डिजर्व यू गाइज 150K सब्सक्राइबर्स दिए हैं और मैं फिर भी अपने चैनल पे अपलोड नहीं कर रहा होता, मैं कुछ भी नहीं कर रहा होता। सो आई थिंक के आई एम अनग्रेटफुल, but I am really grateful to you guys. Have any of your relative or friends been inspired by your work and he had started making edits? यार मुझे काफ़ी ज़्यादा, मुझे अपने लोगों से ज़्यादा आई थिंक सो मुझे DMs आते हैं लोगों के, और मुझे डिफरेंट लोगों के लोग मुझसे पूछते हैं कि किस तरह करते हैं, क्या होता है सब कुछ, तो आई एम हैप्पी टू हेल्प देम। आई थिंक सो फ्रेंड और रिलेटिव से ज़्यादा मुझसे नॉर्मल लोगों ने और मेरे खुद के सब्सक्राइबर्स वगैरह ने पूछा है और उन्होंने स्टार्ट किया है। मुझे अभी भी अक्सर मेंशन आ रहा होता है डिफरेंट, आई फॉरगॉट द चैनल्स नेम,
मैं उनकी यहाँ पे वो लगा दूंगा। सो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मेंशन कर रहे होते हैं एंड ऑल्सो लाइक उन्होंने किया हुआ था कि दे स्टार्टेड एडिटिंग बिकॉज ऑफ मी। तो मुझे बहुत खुशी होती है ये चीज़ के आई एम इंस्पायरिंग सो मैनी पीपल आउट देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंज फॉर यू टू मेक एडिट्स। यार मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंज मेरे लिए MC एडिट्स बनाने के लिए है कि उनकी क्लिप्स लाना, क्योंकि वो इतना बड़ा ड्रामा है ना। तो अब तो मुझे वो दिमाग में फीड हो चुका है कि अब फॉर एग्जांपल मुझे इस कैरेक्टर के ऊपर इस सीन के ऊपर वीडियो बनानी है तो मेरे दिमाग में क्लिक कर जाता था कि कौन सा एपिसोड है, क्योंकि कोई मुझसे रैंडमली भी पूछ रहा होता है तो मैं उसको बता देता हूँ कि ये एपिसोड था या ये है। लेकिन अगेन फिर वो मुझे मतलब अब फॉर एग्जांपल अगर आप एडिटर हो और आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आपको पता है कि आप मतलब आप MC एडिटर नहीं हो लेकिन कोई और एडिटर भी हो, तो आपको पता है कि सीन पैक्स मिल जाते हैं। लाइक कोई भी सीजन हो कुछ भी हो आप उसका सीन पैक डाउनलोड कर सकते हो और आप बना सकते हो वीडियो। लेकिन MC के साथ ये सीन नहीं है, आपको पूरा ड्रामा खोलना पड़ता है, उसका पूरा एपिसोड खोलना पड़ता है, फिर उसके बाद उसके आपको उसको स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ मैं तो, क्योंकि इतना लंबा एपिसोड में डाउनलोड नहीं कर सकता, तो उसको स्क्रीन रिकॉर्ड करके फिर आपको उसको एडिट करना पड़ता है। ऊपर से मेरे साथ क्या सीन है कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी क्वालिटी क्यों अच्छी है, तो मैं उसका भी राज बताता हूँ कि क्वालिटी मेरी एडिट की इसलिए अच्छी होती है क्योंकि आप लोग जो हो ना वो मैग्निफिसेंट सेंचुरी वाले चैनल से आप लोग क्लिप्स उठाते हो जिसके नीचे इंग्लिश सबटाइटल्स होते हैं। वो HD क्वालिटी के क्लिप्स नहीं होते, वो ब्लर हो जाता है और वो वैसे भी ब्लर हुआ होता है, वो इतना अच्छा नहीं होता, मुझे तो पसंद ही नहीं है उसकी क्वालिटी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो उनका ऑफिशियल जो मोहतशम यूजुअल है, जो इनका ऑफिशियल यूट्यूब है, जो ऑफिशियल है, जो टर्किश वाले हैं उन्होंने अपलोड किया हुआ है, मैं उधर जाता हूँ और वहाँ से क्लिप्स लेके आता हूँ क्योंकि वो HD होती हैं। वहाँ से क्लिप्स लाके फिर उसके बाद जो है मैं उनको एडिट करता हूँ। तो इट इज़ अ टफ जॉब, मुझे एक एडिट करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। सो सॉरी मेरे पास कैमरा नहीं है और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि किस तरीके का शूट होता है, इसलिए मुझे बार बार कैमरा थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ रहा है। So next question is, do you know the names of some of your subscribers? If yes, then who are they? इतने सारे लोग ज़्यादा हो गए हैं ना कि मुझे याद तो है उनके नाम, लेकिन अगर मैंने कोई नाम मिस आउट कर दिया ना तो फिर उनको बुरा लग जाएगा, इसलिए मैं किसी का नाम लूँगा नहीं। तुमसे ना हो पाएगा। अभी जितने भी लोग आप मेरी अभी रिसेंट वीडियो जाके देखो या उससे रिसेंट देख लो, तो अभी जितने भी लोग आपको कमेंट्स मिलेंगे ना उन सब के मुझे नाम भी याद हैं और वो मेरे सबसे मतलब लॉयल फैंस हैं, क्योंकि मतलब कोई भी वीडियो होती है ना तो उनका कमेंट सबसे पहले होता है कि पिन मी एंड ऑल दैट, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुरम लाइक्स बिरयानी, आई लाइक्स बिरयानी, डू यू ऑल्सो लाइक बिरयानी? नो, I don't like biryani. I'm sorry, don't kill me please, because मुझे पता है कि बिरयानी कितने लोगों को कितनी ज़्यादा पसंद है, but I'm not a biryani fan. I'm not a rice fan. I don't like rice at all. बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। Next is, which is your favorite edit on your channel? Oh my god, this is so good question. Like मतलब लेट मी थिंक, अगर मेरी लॉन्ग वीडियो पे जाओ ना तो जो मैंने 100 के सब्सक्राइबर्स पे अपलोड की थी जिसमें पूरा मतलब मैंने दिखाया था सब कुछ, एक पूरा ओवरव्यू दिया था, वो मेरी फेवरेट वीडियो है क्योंकि मैं अगर वो किसी को दिखाता हूँ तो वो लाइक आई गेट प्रेज्ड अ लॉट। अगर मैं अपने शॉर्ट्स की बात करूँ तो आई थिंक सो कि जो मैंने जैन मलिक का वो वोकल्स लगाए थे सिर्फ पीछे डस्ट टिल डॉन वाले, और आई थिंक सो वो ये था कि कॉसम लाइक अपने जिस बच्चे से मिल रही है एंड देन फास्ट फॉरवर्ड हर किड इज़ डाइंग, मतलब वो वाला सीन आ जाता है। तो आई थिंक सो कि वो एडिट मुझे काफ़ी पसंद आई थी। शॉर्ट्स मेरी सारी फेवरेट हैं, आई थिंक सो मेरी कोई भी शॉर्ट्स मुझे बुरी नहीं लगती क्योंकि सारी मतलब सारों में मेरा इक्वल हार्ड वर्क है और मेरा इक्वल प्यार जुड़ा है। मैं अगर मुझे कोई एडिटिंग नहीं पसंद, मतलब अगर कोई मुझे एडिट पसंद नहीं आ रही तो फिर मैं वो अपलोड नहीं करूँगा। पहले मैं खुद अपनी एडिट से सेटिस्फाई होता हूँ, उसके बाद मैं एडिट अपलोड करता हूँ क्योंकि मैं अपना खुद का एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ।
I have many questions, but there are some that I have always wanted to ask you for a long time. I understand that some of my questions may seem crazy, but if you do not want to answer them, that is perfectly fine. No, these are not crazy questions. I loved answering your question, and thank you for like questioning such an amazing questions. Okay, so next question is from Hira Bukhari. Please tell how you edit your shorts, which editor you use, and from where you get the ideas. So आइडियाज़ तो आप लोगों की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं कि अब मुझे अपने आइडियाज़ खुद अपना दिमाग लगाने से मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप लोगों की इतनी सारी रिक्वेस्ट होती हैं कि मुझे फिर वही बनानी पड़ती हैं। तो लेकिन उससे पहले मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करके ही बनाता था आइडियाज़, खुद ब खुद आ जाते थे रैंडमली। मुझे मेरे दिमाग के अंदर ऑडियो चल रहा होता था। अब मैं कोई फॉर एग्जांपल कोई ऑडियो सुनता हूँ ना, कोई ट्रेंडिंग ऑडियो, तो मेरे दिमाग में फ़ौरन सीन्स क्लिक होने लग जाते हैं कि अगर मैं इस पर ये सीन लगाऊँ तो दैट वुड बी सच अ ग्रेट एडिट। आपने पूछा हाउ यू एडिट योर शॉर्ट्स, विच एडिटर यू यूज़। सो जब आपने मुझसे पहले पूछा था तो आई यूज टू यूज़ InShot तब 8 months पहले, एंड नाउ आई यूज़ CapCut बिकॉज आई थिंक सो CapCut से बेहतर कोई एडिटिंग क्लिप नहीं है, कोई एडिटिंग वो नहीं है ऐप। सो अगर आप भी एडिटर हो और आपने भी एडिटिंग करनी है तो CapCut करो। मैं अभी एडिटिंग कर रहा हूँ अपने उस Q&A वाली वीडियो की, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो इतनी लंबी हो रही है कि अभी इतने लोगों के क्वेश्चन आंसर्स पड़े हुए हैं, लेकिन वो 20 मिनट से भी ज़्यादा हो रही है। तो फिर मैं इसका दो पार्ट बनाऊँगा। तो पार्ट 1 मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है, आधी Q&A की। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल द क्वेश्चंस एंड ऑल द लव। सो रमज़ान मुबारक, एंड ये मेरा पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 इंशाल्लाह आई विल अपलोड सून। तो बाकी थैंक यू सो मच एंड कीप लविंग मी एंड कीप सपोर्टिंग मी।